Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'll be taking up your next transformation structure series, that is sentences on reported speech, direct to indirect. This is that one marathon video which is going to give you a robust insight into the entire concepts of direct to indirect transformation. And students अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां इसी में करके आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा. आई कैन अश्योर यू इस वीडियो के बाद आपको आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू इट्स कोर एंड क्रिस्टल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है. देखिए, जब भी किसी पर्सन का एक्चुअल वर्ड्स को कोटेशन मार्क के अंदर बोला जाता है उसको हम लोग डायरेक्टेड स्पीच बोलते हैं. ठीक है. सो इट इज लाइक द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड इज गिवन इन द सेंटेंस रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क. फॉर एग्जांपल, शी सेड, comma, inverted comma open, I am tired. So it is the exact word of the speaker. But when you transform it to the reported speech or indirect speech, it is the same idea which is reported but without a quotation mark. हम लोग quotation mark को हटा देते हैं. So hint के लिए मैंने आपको बोला है कि think like some third person is reporting what the first person said. For example, the first person said, I am tired. Now I am to report it to some another person. So I am going to say that she said that she was tired. So it is like कोई तीसरा इंसान बता रहा है कि उसने क्या कहा, किसी और को बोला जा रहा है. That is your reported speech. ठीक है. Now coming to the structure. Direct speech का structure goes like subject plus your reporting verb. Now what could be your reporting verb? Your reporting verb could be said. It could be says in the present tense. It could be asked. It could be inquired, etc. These are your some example of your reporting verb. Plus quotation के अंदर में actual words जो बोला गया है. But when we transform it to indirect speech, हम लोग उस quotation को हटाने के लिए how do we transform it? हम लोग subject लेता है. Same thing, reporting verb यानी इसी का इस्तेमाल करेगा यहाँ पे reporting verb पे. And then all these are your linkers. इसको हम लोग linkers बोलते हैं, जिसको लगाना पड़ता है in order to join that direct speech into indirect, जो भी बोला गया है. ठीक है. It could be that, it could be if, it could be whether, it could be WH. H word वाला question मैं आऊंगा अभी उस पे कि WH वाला को कैसे यूज करते हैं. Then the reported clause यानी जो भी बोला गया था. So please bear this thing in mind. हम लोग that का इस्तेमाल कब करते हैं? When the question is in the assertive form, यानी statement form में है तो that के through join करेंगे. अगर question is in the interrogative form, in that case हम लोग if या फिर whether का इस्तेमाल करते हैं connect करने के लिए. अगर question has come in the format where WH या H वाला question को इस्तेमाल किया गया है in the direct speech, in that case हम लोग उसी को as a reporting verb इस्तेमाल करते हैं to make it into indirect speech. I will come to that. ठीक है. And then your remaining part of the reported clause, जो भी remaining part of the sentence है उसको इस्तेमाल करके join किया जाएगा. Now next important thing that you have to bear in mind is about the change of tense which is regarded as backshifting. जब भी आप direct से indirect speech में transform कर रहे हो, आपका tense का backshifting होता है. And आपको ये table बहुत काम आएगा उसके लिए. ठीक है. जहां पे please note down what I'm saying, that कोई भी question अगर direct speech में simple present में दिया है, it becomes simple past tense. For example, simple present का दिया है talk. ठीक है. V1 is your simple present. So simple past में वो बन जाएगा talked. That is V2. उसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म दिया है क्वेश्चन में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. टॉकिंग, इज, एम, आर, टॉकिंग. तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा वॉज, वर, टॉकिंग. तीसरा, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है? हैज, हैव, टॉक्ड, which is your third form. This talked is not your second form, it is the third form. It's a regular verb जिसका past और participle same है. तो ये बन जाएगा past perfect had talked.
ठीक है, हैज हैव टॉक विल बिकम हैड टॉक। सिमिलरली अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है? हैज, हैव, बिन टॉकिंग। क्योंकि परफेक्ट है बोल के हैज हैव होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ आपका थर्ड फॉर्म दैट इज बीई का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बिन बन जाएगा, बीई का थर्ड फॉर्म, एंड आईएनजी फॉर योर कंटिन्यूअस सेंटेंस। सो हैज हैव बिन टॉकिंग विल बिकम हैड बिन टॉकिंग। Present perfect continuous becomes past perfect continuous. Now coming to the questions in the past form. अगर क्वेश्चन ही पास्ट फॉर्म में दिया है, सपोजिटली सिंपल पास्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो गया? अगर क्वेश्चन में आपको टॉक्ड दिया है यानी V2 दिया है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा यानी हैड टॉक्ड, इट विल बिकम हैड टॉक्ड। सिमिलरली अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है क्वेश्चन वाज, वर, टॉकिंग, that will become past perfect continuous. Past perfect continuous मतलब हो गया had been talking. अगर क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट में दिया है तो फिर वो चेंज ही नहीं होता है। जैसे अगर had talked दिया है वर्ब के फॉर्मेट में तो ये had talked ही रहेगा, एंड अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो भी वो फिर आपका सेम रहेगा, यानी कि अगर had been talking दिया है तो फिर वो आंसर में भी इंडायरेक्ट में भी had been talking ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। दिस इज योर टेंस का बैक शिफ्टिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, these words that you are seeing over here, will, can, may, must, these are regarded as your modal verbs, ठीक है, modal verbs which can also be used as an auxiliary verb, और ये भी modal verbs है जो कि present form में दिया हुआ है, ठीक है, it is in the present form like will, can, may, must। इसको जब आप इनडायरेक्ट में करते हो तो फिर वो मॉडल वर्ब्स ही रहते हैं, मॉडल वर्ब्स ही रहते हैं, बट वो पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे कि विल बिकम्स वुड, कैन बिकम्स गुड, मे बिकम्स माइट, मस्ट बिकम्स हैड टू। However, irrespective of whether the modal verb is in the present or the past form, it is always followed by a main verb। कोई भी मॉडल वर्ब हमेशा अपने मेन वर्ब में, मेन वर्ब से फॉलो करता है, एंड जो मेन वर्ब रहेगा चाहे वो प्रेजेंट मॉडल का हो या पास्ट मॉडल का हो, द मेन वर्ब हैज टू बी इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, दैट इज इट्स बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आर्यन सेड, comma, inverted comma, open, I will call you tomorrow, full stop, inverted comma, close, that is your direct speech। So इसका जो will है वहां पे वो आपका मॉडल वर्ब हो गया प्रेजेंट फॉर्म में। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में करोगे तो ये कैसा बन जाएगा? आर्यन सेड दैट he would call me the next day। So I will call present tense, he would call present tense, it does not change in case of modal verbs, ठीक है, we'll come to that as well आगे। Now next thing, अब सवाल आता होगा कि कौन सा ऐसा टेंस है जो चेंज नहीं होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं। Whenever your reporting verb is in the present or is in the future, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा यानी सेड होगा, आस्क्ड होगा, दिया हुआ रहेगा, टोल्ड होगा क्वेश्चन में, तो फिर आप टेंस का बैक शिफ्टिंग करते हो। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब ही प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि ही सेज, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब व्हिच इज इन द प्रेजेंट टेंस, इन दैट केस टेंस चेंज ही नहीं होता है इनडायरेक्ट में। ही सेज आई एम बिजी, ही सेज दैट ही इज बिजी, आई एम बिजी, अच्छा आई है बोल के एम लग रहा है, लेकिन जब आप बोलोगे प्रोनाउंस को चेंज करोगे, आई विल बिकम ही, तो आप उसके साथ ही एम बिजी नहीं बोल सकते ना, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि दिस एम इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ बीई, राइट। बीई का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, बीई का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है इज, एम, आर,
एंड आपको इतना तो पता है कि आई के साथ एम यूज करते हैं और ही और शी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, वी और दे के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। सो इसीलिए ही सेज दैट ही इज बिजी, बट टेंस प्रेजेंट ही है। अनदर एग्जाम्पल फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ्स इन फैक्ट, उसमें भी आपका टेंस चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट में। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑल्दो द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट फॉर्म, but the context which is being spoken about is a general and a universal truth, so that will not change into the past form. The teacher said that the sun rises in the east. For that, for this kind of answer आप ये नहीं बोल सकते हो the teacher said that the sun rose in the east, that will get incorrect. यहां back shifting नहीं होगा. I hope that is clear. Another example, Aryan says, comma, inverted comma open, Rahul is funny. Aryan says that Rahul is funny, full stop. There is no change of the tense in that case. I hope that is clear. Now, इसके अलावा you have to remember that जब भी आप direct से indirect कर रहे हो, आपको pronouns को भी change करना पड़ता है। जैसे अगर question में direct speech में I दिया है, तो depending upon कि gender क्या है, वो he या she में transform हो जाता है। अगर we दिया है तो फिर वो they बन जाता है। my दिया है तो his या her बन जाता है वो। आर दिया है तो देर बन जाता है उनका, एंड प्लीज उसमें गलती से THERE वाला देर मत लिख दीजिएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये देर पोजीशन बताता है और THEIR वाला देर पोजेशन बताता है कि ये उसका है, दैट इज THEIR, एंड THERE मतलब वहां है। ये आपका डिफरेंस हो गया, डोंट मेक दैट मिस्टेक। मी बन जाएगा हिम या हर। सो ये सारे चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट there is a change in the time and the place of the words when you are shifting from direct to indirect. For example, अगर क्वेश्चन में दिया है now inverted comma के अंदर में, तो फिर वो then बन जाएगा। today दिया है तो वो that day बन जाएगा। yesterday है तो the previous day बन जाएगा। the is very important, don't forget this article। बिना the के अगर खाली previous day कर दिया तो incorrect हो जाएगा। last night बन जाएगा the previous night। here will become there, next week will become the following week, this will become that, these will become those. So these are some of your change of time and place words from direct to indirect, ठीक है। and I think there is, yeah, there are two more. Ago becomes before and come becomes go many of the times, ठीक है। so these are some of the important things that you need to bear in mind before you get going with solving any question associated with reported speech. चलिए आपको थोड़ा सा अब क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द प्रेजेंट सिंपल, एनी क्वेश्चन व्हिच कम्स इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस, जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल प्रेजेंट बन जाता है सिंपल पास्ट, राइट। सी द क्वेश्चन, शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। क्या पहचान है सिंपल प्रेजेंट का, आई लाइक, आई लाइक इज द सिंपल प्रेजेंट। सो इसके लिए आपका आंसर बन जाएगा, शी सेड, यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब दैट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब दैट का इस्तेमाल होगा। शी सेड दैट, अब प्रोनाउंस भी आपको चेंज करना है। ये आई क्या बन जाएगा, क्योंकि यहां पे जेंडर फीमेल है तो शी सेड दैट शी लाइक्ड हो जाएगा, क्योंकि ये V1 पे है तो ये आपका V2 बन जाएगा। शी सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम, फुल स्टॉप। आई होप दैट इज क्लियर। ही सेड, कॉमा, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, तो ये हो जाएगा, ही सेड that I will become he. This play, which is V1, it will get transformed into V2. He said that he played football every day. Full stop. He said that he played football every day. That is how you transform it. So simple present into simple past. Coming to next, present continuous. She said, I am reading. So this am is your helping verb. Reading is your fourth form. A novel. I am reading a novel.
So present continuous becomes past continuous क्योंकि is, am, are plus V4 will become was, were plus V4. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो was का इस्तेमाल करेगा, प्लूरल है तो फिर were का इस्तेमाल करेगा. She said, I am reading a novel. She said, and it is assertive sentence. So she said that I will become she, am will become क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है बोल के was का इस्तेमाल होगा. She said that she was reading a novel. Full stop. That is how you do it. He said they are watching TV. Again, it is present continuous. They are watching. He said that assertive sentence से बोल के that आएगा. They, now they के साथ क्या use होगा? Were, क्योंकि subject is plural. So he said that they were watching TV. Full stop. That is how you do it. Third one, present perfect. Sentences with present perfect becomes past perfect. Present perfect becomes past perfect. She said, I have finished my homework. Present perfect का पहचान क्या है? Has, have के साथ V3 होगा, participle होगा. तो वो बन जाएगा आपका had के साथ V3. She said, I have finished my homework. She said that this I will become she, have will become had, finished, my का हो जाएगा her, homework. Full stop. एक एक तोड़ तोड़ के अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे आपका कभी भी गलत नहीं होगा. ठीक है. He said, we have won the match. Have won. He said that we का क्या हो जाएगा? They. Have का क्या हो जाएगा? Had. Won खुद ही आप, it's win, won and won. So past and participle दोनों सेम है, तो they had won the match. Full stop. That is how you transform. Going to the next one. If the question is in the simple past tense, then it will become past perfect. Simple past का पहचान क्या है? ed या d रहेगा, ed या d वाले verb रहेंगे, यानी V2 के फॉर्मेट पे रहेगा. So that will become had plus V3 का फॉर्मेट in case of reported speech. She said, I visited my aunt yesterday. I visited. So it's in the past form. इसका हो जाएगा she said that I will become she had visited. And please remember this visited is your third form. It is visit, visited, visited. Regular verb. Third form. She had visited. My का हो जाएगा her aunt, and yesterday will become the previous day. Full stop. That is how you have to transform. He said, I bought a new phone. He said that ये I हो जाएगा he, bought हो जाएगा क्योंकि ये past है तो past perfect में हो जाएगा he had bought. Now why had bought? It is by, bought, bought. Third form is bought. ठीक है, this is in the third form that he had bought a new phone. Full stop. That is how you do the back shifting. Coming to next, past continuous. Past continuous का पहचान क्या है? Was, were plus V4 ing. Past continuous becomes past perfect continuous. Past perfect continuous का मतलब क्या हो जाएगा आपका? Had been plus V4. She said, I was cooking. That is past continuous. She said that I will become she.
was cooking बन जाएगा had been cooking food, full stop. That is how you do it. He said they were playing outside. He said that they का they ही रहेगा, that they were playing हो जाएगा आपका had been playing. So they had been playing outside, full stop. And coming to the future tenses or sentences with modal verbs, he said, I will call you. अब ये will का क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया आपको, will become your would. And in both the cases, दोनों ही cases में main verb हमेशा अपने first form पे रहेगा, that is अपने base form पे रहेगा, वो change नहीं होगा. She said, I will call you tomorrow. She said, assertive है बोल के that, I will become she, will become would, मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे ही रहेगा. शी वुड कॉल्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है. शी सेड दैट शी वुड कॉल, यू विल बिकम मी, राइट. शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप. दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है. ही सेड वी विल स्टार्ट द वर्क सून. He said that we का क्या हो जाएगा, they, will का हो जाएगा would, start ही रहेगा, they would start the work soon. He said that they would start the work soon. That is how you do it, ठीक है. Coming to the next one now, sentences with W, H and H sort of questions. She said, where do you live? यहां पे फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब दैट, इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है. जो भी WH वाले जैसे वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, इन सब में आपको उसी को एज अ रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है. आप उसमें दैट, इफ, वेदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. प्लीज बेयर दैट थिंग इन माइंड. शी सेड वेयर डू यू लिव. सबसे पहले तो वेयर को तो वेयर ही रखेंगे. ये डू यू लिव को आप पहले पहचानिए, ये कौन से टेंस में दिया है. डू यू लिव, इट इज इन द प्रेजेंट, राइट. एंड दैट टू कौन सा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट. तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट बिकम्स योर सिंपल पास्ट. लिव का क्या हो जाएगा, लिव का हो जाएगा यहां पे लिव्ड. सो इसीलिए इसका आंसर होगा शी आस्क्ड. नाउ व्हाई आस्क्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव है बोल के आस्क्ड होगा, सेड नहीं होगा. शी आस्क्ड. यूजुअली आस्क्ड के साथ इफ वेदर का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर डब्ल्यू एच और एच वाला क्वेश्चन है तो फिर हम लोग इस इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो शी आस्क्ड वेयर आई lived, full stop. Please do not put a question mark over here, you'll get incorrect. Indirect speech में question mark नहीं लगता है. Indirect speech convey करता है कि वो एक statement है, so it has to be concluded using a full stop, ठीक है. He said to me. Now whenever you get to see that he said to me, या अच्छा यहाँ पे तो ask लगेगा, but then कभी कभी आता है Aryan told, Aryan said to Reena, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, एंड देन जो भी आपका दिया हुआ हो. इन दैट केस आप आर्यन जब इनडायरेक्ट करोगे आप सेट टू रीना नहीं बना सकते हो. जब दो पर्सन दिया गया है, मतलब बताया जा रहा है कि ये किसी को बोला गया है, तो इन दैट केस यू हैव टू मेक यूज ऑफ आर्यन टोल्ड रीना एंड नॉट सेट टू रीना in the indirect speech. Please remember that when two persons are given in the direct speech ka question, then your indirect speech has to start from Aryan told that person and not said to that person. ठीक है, got it? So over here, why are you laughing? Aryan, he said to me, why are you laughing? So he asked me. Now first identify the tense.
आर यू लाफिंग, आर यू लाफिंग क्या हो जाएगा? व्हाट इज आर यू लाफिंग? आर यू लाफिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट? इट इज आर के साथ, इज एम आर के साथ आईएनजी यूज हो रहा है, सो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर प्लस V4. पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वॉज वर प्लस V4. उसके बाद आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. ही आस्क्ड मी, मेरे से पूछा जा रहा है. वाई का वाई ही रहेगा क्योंकि ये आपका WH वाला क्वेश्चन है. वाई. आर यू लाफिंग का क्या हो जाएगा? वाई आई वॉज लाफिंग. वाई आई वॉज लाफिंग, फुल स्टॉप. नाउ अब आपका सवाल आता होगा कि सपोजिटली अगर आप एक जनरल क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हो तो वहां पे आप देख पा रहे हैं कि वाई आर यू लाफिंग है, मतलब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आर है एंड देन सब्जेक्ट है एंड देन योर वर्ब है इन द फोर्थ फॉर्म. बट जब मैंने यहां पे लिखा ही आस्क्ड मी वाई वॉज आई लाफिंग नहीं करके मैंने वाई आई वॉज लाफिंग किया. क्यों? वेयर आर यू गोइंग? Now, when you ask a question to a person, then the structure goes like whatever is the question ka form, WH word, then comes your helping verb, then comes your subject, and then comes your verb, main verb, whichever form, चाहे वो V1 हो, V2, V3, V4 जो भी हो, ठीक है? Over here it is V4. So, normal question जब आप पूछते हो तब helping verb subject के पहले आता है. बट जैसे ही आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में डालते हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो अपना जगह बदल लेता है, इन्वर्जन हो जाता है. इसीलिए जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलोगे, वेयर आर यू गोइंग बन जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी वेयर, यू तो बन जाएगा आपका आई. सो वेयर was I going will become incorrect in that case. Rather, it has to be where I was going. So आपने क्या देखा? यहां पे ये WH वाला क्वेश्चन हो गया, ये I यहां पे हो गया सब्जेक्ट, ये was हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और ये गोइंग हो गया आपका V4. तो आपने क्या देखा? नॉर्मली जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इट इज लाइक हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, बट जब वो इनडायरेक्ट में जा रहा है तो इट इज फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब. इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर नंबर कट जाता है बच्चों का. बहुत बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, ठीक है? अनदर वन, द टीचर सेड हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम. ठीक है, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम? द टीचर आस्क्ड आइडेंटिफिकेशन. H वाला पार्ट तो H ही रहेगा. द टीचर आस्क्ड हाउ, ये तो सेम रहेगा. डिड यू सॉल्व द सम, डिड यू सॉल्व द सम. डिड यू सॉल्व क्या हो गया? इट इज, जस्ट लेट मी रब दिस ऑफ. डिड यू का मतलब हो गया इट इज सिंपल पास्ट, जहां पे डिड का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब किया गया है. डिड यू सॉल्व दिस, डिड कन्वेज सिंपल पास्ट. एंड सिंपल पास्ट आप जानते हैं सिंपल पास्ट क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट. तो ये डिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिड कन्वर्ट हो जाएगा हैड में, पास्ट परफेक्ट में. सो द टीचर आस्क्ड हाउ, यू क्या हो जाएगा? सबसे पहले हाउ आई, हाउ हैड आई अगेन विल गेट इनकरेक्ट. हेल्पिंग वर्ब आप पहले नहीं घुसा सकते, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट में, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा. सो हाउ आई हैड सॉल्व विल बिकम सॉल्व्ड, क्योंकि जब आप डिड को इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, द मेन वर्ब हैज टू बी इन इट्स फर्स्ट फॉर्म. बट व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ हैज, हैव, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, then your main verb has to be in its third form, that is participle form. So how I had solved this sum, full stop. I know it is a bit complex, but then you have to keep your patience, keep your calm, and then understand what I'm trying to say.
ठीक है, ये WH वाले क्वेश्चन में अक्सर लोग फंस जाते हैं, सो ध्यान रखिएगा. And then coming to the next one, exclamatory sentences. Now, whenever exclamatory sentences आएगा, then आपको वहां पे reporting verb exclaimed का इस्तेमाल करना है, ठीक है, said का नहीं. She said, what a beautiful scene. She exclaimed. And then आपका reporting verb आएगा, she exclaimed that. What a beautiful scene will become, it was a beautiful scene. So exclamatory sentence आपका assertive बन जाएगा. She exclaimed that it was a beautiful scene. ठीक है. He said, how foolish I was. He exclaimed that. Again, was है, right? Was है. Was का मतलब क्या हो गया? ये किसमें दिया है? It is given in the simple past. Simple past क्या बन जाएगा? Simple past becomes past perfect. यानी was का क्या हो जाएगा? हो जाएगा had. एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये was हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. हाउ फुलिश आई, अब आप आई पे रुक गए तो फिर सेंटेंस तो इनकम्प्लीट हो गया. तो वहां पे was को एज अ हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है. बोल के हैड के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो अपने थर्ड फॉर्म पे कौन सा फॉर्म पे रहता है? हेल्पिंग वर्ब बिन के फॉर्म पे. सो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ही एक्सक्लेम दैट ही हैड बिन foolish. Full stop. He exclaimed that he had been foolish. That is how you transform. I hope that is clear. Coming to the next one, sentences which are requested and commanded. इसमें भी हम लोग requested का इस्तेमाल या फिर commanded का इस्तेमाल करते हैं instead of using said. ठीक है. So she said to me बन जाएगा she requested me. Please help me with this work. She requested me to, infinite form चाहिए, to help. Please remember that to के साथ हमेशा first form जो कि आपका infinite form बन जाता है किसी भी verb का. ठीक है, to के साथ हमेशा first form ही आता है. She requested me to help. me हो जाएगा उसको, so to help her with. This will become that work. Full stop. She requested me to help her with that work. ठीक है. He said to her, please wait here for some time. He requested her to wait. Here will become there for some time. And the last one, sentences जिसमें commanded होता है. The teacher said to the students, complete your homework. So she is giving a command, right? So it will be the teacher commanded the students, the teacher commanded the students to complete your homework. So to complete their homework. The officer said to the man, show me your driving license. The officer commanded the man to show me का हो जाएगा him, your का हो जाएगा his driving license. That is how you transform your sentences in case of reported speech, direct to indirect. I hope this video helps. And इसके बाद आपके और कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए. प्लीज याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में है तो फिर वहां पे टेंस का बैक शिफ्टिंग मत करिएगा. एंड गिव योरसेल्फ एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस विथ WH and H वाले सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, क्योंकि उसी में अक्सर लोग गलती करके आते हैं. So I hope you're liking my content. If you are, then please don't forget to like, share, subscribe. Keep smiling, keep studying. Have a great time preparing for your examination. Take care. Bye-bye.